Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th basic sample question paper. We have already completed section D of this sample paper. So if you haven't watched the first 4 sections of this sample paper, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. Today we are continuing the sample paper and diving into the next questions. So right now we are starting with section E, question number 36. There are 3 questions of in section E that are case study based questions. So let's start the video. So in this question, carpooling is the sharing of car journeys so that more than one person travels in a car and prevents the need for others to have to drive to a location themselves. By having more people using one vehicle, carpooling reduces each person's travel cost such as fuel cost, tolls, and the stress of driving. Carpooling is also a more environmentally friendly and sustainable way to travel as sharing journeys reduces air pollution, carbon emissions, traffic congestions on the roads, and the need for parking spaces. सो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, पॉइंट ए 4,5, पॉइंट बी 6,2 एंड सी 2,6. ठीक है. There are 3 friends, Amar, Bhavin, and Chaitanya, live in societies represented by points A, B, and C. A point is for Amar, B point is for Bhavin, and C point is for Chaitanya. They all work in offices located in the same building represented by the point O, that is the origin. Since they all go to the same building every day, they decided to do carpooling to save money on petrol. Based on the above information, answer the following questions. What is the distance between B and C? तो देखिए B and C के बीच का distance. So B point is, तो सबसे पहले distance formula होता क्या है? Is under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ठीक है. पॉइंट बी एंड सी, देखिए हमें कहाँ कहाँ का डिस्टेंस पता करना है बिटवीन बी एंड सी. बी पॉइंट इज 6,2 एंड सी पॉइंट इज 2,6. दिस इज x1 y1 x2 y2. तो ये पॉइंट्स हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 16 अगेन 4 स्क्वायर इज 16. तो ये हो जाएगा √32 और वी कैन राइट इट एज 4√2 यूनिट्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है हमारे पास. डिस्टेंस निकालना था बिटवीन बी एंड सी, तो फर्स्ट हो गया. सेकेंड, इफ भाविन एंड चैतन्य plan to meet at a club is situated at the midpoint of the line joining the points B and C. Find the coordinates of this point. तो देखिए भाविन एंड चैतन्य डिसाइड करते हैं कि बीच में किसी मिड पॉइंट पे वो मीट करेंगे. इट मीन्स हमें इसमें क्या निकालना है, लाइन बी सी का मिड पॉइंट निकालना है. तो चलिए निकालते हैं. लाइन बी सी, बी इज दिस एंड सी इज दिस. ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2
एंड सी के हैं 2,6। इसका मिड पॉइंट निकालना है, लेट इट बी एम। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इससे। ठीक है, कितना हो गया देखिए, 6 + 2/2 +2 + 6/2, तो 8/2 दैट इज 4,4। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पॉइंट, थर्ड को पार्ट का क्वेश्चन, ए पार्ट, विच सोसाइटी इज फादर्स्ट फ्रॉम द ऑफिस, ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। तो देखिए, ऑफिस का जो पॉइंट है दैट इज ओ पॉइंट। दे ऑल वर्क इन ऑफिस लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट 0,0। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है? जितने भी ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना है ऑफिस से, दैट इज ओ पॉइंट से। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। एंड उसमें हमें देखना है कि फारदेस्ट का कौन है ऑफिस से। जो भी डिस्टेंस ज़्यादा आएगा वही फारदेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ए पॉइंट इज 4,5। सो A point is 4,5, O point is 0,0। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले ओ ए। तो 4 - 0 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 - 0 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये आ गया हमारे पास 41 √41 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही ओ बी निकालेंगे। बी इज 6,2 एंड ओ इज 0,0। तो ओ बी आ गया हमारे पास 36 + 4। देखिए कैसे, 6 - 2 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर, सॉरी 6 - 0 का होल। 6 का स्क्वायर इज 36, 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया √40 यूनिट्स। ऐसी ओ सी का डिस्टेंस, सी पॉइंट इज 2,6 एंड ओ इज 0,0। तो इसका अंडर रूट भी सेम आ गया। 2 - 0 is 4, 6 - 0 का होल स्क्वायर इज 36, दैट इज √40 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आ गया। तो सबसे बड़ा क्या है, हमने किसी को भी हमने रूट से नहीं निकाला है। ठीक है, √40 है, √40 ओ बी एंड ओ सी दोनों ही सेम डिस्टेंस है, बट ओ ए √41 है। ठीक है, तो फादर्स डिस्टेंस कौन सा हो गया? ओ ए। तो ए पॉइंट हमारा farthest है, मीन्स सोसाइटी ए इज द farthest फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट का ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट ये और है। आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियरर टू ए, ऑल्सो फाइंड देयर डिस्टेंसेस। अब ए के पास में कौन सी सोसाइटी, बी है या सी है? तो हम अब क्या निकालेंगे? ए बी डिस्टेंस एंड ए सी डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। तो ए इज 4,5, बी इज 6,2 एंड सी इज 2,6। तो हमें ए बी निकालना है एंड ए सी निकालना है। तो ए बी इज 6 - 4 का होल स्क्वायर +2 - 5 का होल स्क्वायर।
ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 4 + 9 13, इतना यूनिट्स। ठीक है। ए सी इज 4 - 2 का होल स्क्वायर +5 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये आ गया हमारे पास √5 यूनिट्स। अब क्योंकि हमने दोनों को ही रूट में ही रखे रहन दिया है तो हमारे पास हमें क्या देखना है कि कौन सी सोसाइटी ए से नियरर है। तो जो कम डिस्टेंस होगा वही नियरर है। कम डिस्टेंस किसका है? सी सोसाइटी का। सो सोसाइटी सी इज नियरर टू सोसाइटी ए। ओके। तो ऐसे हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37th। A water sprinkler is the device used to irrigate agricultural crops, lawns, land spaces, golf courses, and other areas. Water sprinklers can be used for residential, industrial, and agricultural usage. A water sprinkler is said to shoot a stream of water a distance of 21 meters and rotate through an angle which is equal to complementary angle of 10 degrees. ठीक है। What is the area of sector in terms of arc length? तो देखिए, आर्क लेंथ के टर्म्स में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्क लेंथ होता क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, आर्क लेंथ इज का फॉर्मूला इज 3 θ/360 इंटू 2πr। ठीक है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 इंटू πr²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, θ/360 इंटू πr इंटू आर। तो देखिए ये पार्ट हमारा आ चुका है, θ/360 इंटू πr। हमें 2 और चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा θ/360 इंटू 2πr इंटू r/2। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो हमारा क्या है? इतना पार्ट, दिस इज आर्क लेंथ। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू आर्क लेंथ इंटू रेडियस बाई 2। तो हमने अपना फॉर्मूला आर्क एरिया ऑफ सेक्टर को हमने आर्क लेंथ के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था फर्स्ट पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाटर्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो ये तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक्चुअली हमें, तो ये हम यहीं पे कर देते हैं इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है इज θ/360 इंटू πr²। ठीक है। अब एरिया θ/360 इज थीटा इज, देखिए थीटा कितना है हमारे पास, थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? x + 10 = 90 मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। और जो एंगल थीटा दे रखा है वो दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90। इट मीन्स x जो है वो कितना हो गया, 90 - 10 दैट इज 80 डिग्रीज। तो यहाँ पे थीटा हमें क्या दे रखा है, 80 डिग्रीज दे रखा है। तो 80/360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 21। देखिए यहाँ पे दे रखा है रेडियस।
डिस्टेंस कहाँ तक स्ट्रीम जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 21। ठीक है, तो यही रेडियस है, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 0 से 0 कट, 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा, एंड 2 आ गया, 2 इंटू 22 अपॉन 9 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये हो गया 7 3 जा 21। तो हमारे पास आ गया अभी 44 इंटू 63 अपॉन 9। ठीक है, अभी इसको और ब्रेक करेंगे, बल्कि यहीं पे कर देते हैं। 3 आया था, 3 3 जा 9, एंड ये कट हुआ तो 7 जा, तो ये आ गया हमारे पास 14 इंटू 22। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 22 इंटू 14, तो ये आ गया हमारे पास 308 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड का ए पार्ट। If the radius changes to 28 meter, find the angle theta so that the area of the watered region remains the same. अब वाटर्ड रीजन का जो एरिया है वो सेम है, लेकिन थीटा रेडियस चेंज हो गया, तो उसके लिए थीटा निकालना है। तो ये एक्चुअल में ये कह रहे हैं, थर्ड का ए पार्ट करते हैं, कि जो एरिया है वो तो सेम रहा है। एरिया हमने अभी निकाला कितना, ये रहा एरिया 308, तो ये तो 308 ही है, इक्वल टू, अब हमें थीटा निकालना है, जबकि जो रेडियस है वो 28 का, 28 हो गया है। ठीक है, तो 308 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ओके, तो 7 4 जा, 4 9 जा 36, एंड 2 से कट करते हैं, 11 जा, ये 45। अब दूसरी तरफ ले जाते हैं, थीटा निकालते हैं, 308 इंटू 45, सॉरी 45 अपॉन 11 इंटू 28। तो ये 7 से कट हो जाएगा, 7 4 जा 28, 4 जा, 7 4 जा 28, 11 4 जा, एंड 4 से ये 4, तो एंगल आ गया हमारा 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया है। अब बी पार्ट, इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड फॉर फ्रॉम 21 to 28 सेंटीमीटर मीटर एंड द एंगल रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वाटर। इंक्रीज इन एरिया मीन्स पहले क्या एरिया था और बाद का एरिया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि एंगल अब सेम है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इंक्रीज इन एरिया विल बी थीटा अपॉन 360, थीटा तो सेम है, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर अब हमारा 28 हो गया है, पहले 21 था। ओके, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअली। ओके, तो कट करते हैं, 4 2 जा 4 9 जा, तो 2/9 इंटू 22/7, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा देते हैं, 28 माइनस 21 दैट इज 7 इंटू 28 प्लस 21 दैट इज 49। तो 7 से 7 कट हो गया, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 239.56 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38। So one of four main blood types can be found in a human body. They are known as A, B, AB, and O. Each blood type can be further classified as either a rhesus
positive or rhesus negative. For example, a possible combination is blood type O and rhesus negative, which is written as O. The data given shows the distribution of the blood types and rhesus types of given blood type for a blood donation center recorded for the year 2023. सो आपको ये एक टेबल दी हुई है जिसमें ब्लड ग्रुप दे रखे हैं ओ, ए, बी एंड ए बी। रीसस फैक्टर दे रखे हैं ओ के, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे ही ए के, बी के एंड ए बी के। और नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं परसेंटेज में कि कितने पर्सन का ब्लड ओ नेगेटिव है वो एक्स है, ओ पॉजिटिव 30 है। ऐसे ऐसे आपको सारे परसेंटेज में बताए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स कहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स में ये एक्स है, तो एक्स पता करना है। अगर आप इन सबको ऐड कर दें, इन सबको, और इक्वल टू 100 कर दें। 100 क्यों? क्योंकि ये इन परसेंटेज दे रखा है। तो आपको, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 100 इक्वल टू एक्स प्लस 30 प्लस 8 प्लस 24, ऐड यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 90 हो गई ये। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, x प्लस 90। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, 10%। ठीक है, क्योंकि पूरा परसेंटेज में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैज़ अ रीसस नेगेटिव ब्लड टाइप। अब देखिए रीसस नेगेटिव ब्लड टाइप, नेगेटिव ब्लड टाइप का क्या मतलब है, मींस ओ नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ओ नेगेटिव हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू 10 आई है। तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 होल अपॉन 100। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है किसकी, रीसस नेगेटिव ब्लड टाइप की। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीसस नेगेटिव ब्लड टाइप। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 20, 25 अपॉन 100 और 1/4। तो ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, अब थर्ड का ए पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड इज रीसस पॉजिटिव बट नीदर ब्लड टाइप ए नॉर ब्लड टाइप बी। देखिए रीसस पॉजिटिव हो, अब देखिए रीसस पॉजिटिव कौन कौन से हैं, ये वाला है, सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन ए और बी नहीं होनी चाहिए, ए और बी नहीं होनी चाहिए मीन्स ना तो ये वाला पार्ट लेना है ना ये लेना है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ओ पॉजिटिव दैट इज 30 एंड एंड ए बी पॉजिटिव दैट इज 3। तो हम, हमारी जो थर्ड का ए पार्ट का आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी, रीसस पॉजिटिव बट नीदर ब्लड टाइप ए नॉर बी, आप इधर लिख सकते हैं, इक्वल टू 30 प्लस 3 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 100। ये ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट, और के बाद बी पार्ट है, पीपल with blood type AB positive are known as universal recipient and with blood type O negative are known as universal donor. Find the probability of a selected person to be neither universal recipient nor universal donor. ठीक है, तो अब देखिए, ना तो वो यूनिवर्सल डोनर हो ना ही यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो। इट मीन्स
ना तो ए बी पॉजिटिव ना ही ओ नेगेटिव। ना तो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, तो हमें एक तो ये नहीं चाहिए, ना ही ओ नेगेटिव। ये दोनों के अलावा जितना भी होगा वो क्या होगा, वो हमारा आंसर, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली। तो देखिए, एक्स तो 10 है और ये 3 है, और टोटल कितना है, ये 100 है। तो बाकी का बचा हुआ कितना पार्ट हुआ, 100 - 13 इज 87। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी कि selected person to be neither universal recipient nor universal donor is 87/100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। So that's all for today, and that's the wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, and यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक पूरा हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे वो आएगी स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। Okay, so drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.